Good evening, ladies and gentlemen. Everyone has been mentioning their राब्ताज here. हर एक अपने राब्ता की बात कर रहा है. Well, मेरा राब्ता इस बड़े साल हो गए इस चैनल से है. एक इंसान से नहीं बल्कि जी टीवी से है. मेरी शुरुआत जो थी वो कसम से नाम के एक शो से हुई थी जो मैंने लिखा था और जो जी टीवी के लिए था. और इस शो ने काफ़ी मुझे प्रोत्साहन दिया था, काफ़ी सामने लाया था, काफ़ी बढ़त दी थी. सो इन अ वे मेरा पूरा कनेक्शन जो था इस चैनल से काफ़ी हद तक इन शोज़ की वजह से जो मैंने लिखे सब्सिक्वेंटली भी दूसरे शोज़ में काम किया तब भी बन पड़ा. तो इट वाज लाइक अ होमिंग फॉर मी कि मैं इस चैनल पे वापस अपना कोई शो लेकर आती हूँ. एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट्स वेरी क्लोज टू मी. आई हैव लॉस्ट माई मदर, सो समवेयर मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ से इस शो के द्वारा कनेक्ट कर पाती हूँ. और and presenting the show to you all, and I hope you all give the same love and affection that we have given it when we've written it and envisioned it. Thank you so much. I'd like to now call the two central protagonists of the show, around whom all the tension is firing up on your screens right now. That would be Purva Gokhale and Reem Sheikh, who play Anupriya and Kalyani respectively. So ladies, please share with us quite an impactful promo that one at the end, where she says, quite an impactful promo right at the end where she says, "Aapki maa banne ki औकात nahi." So tell us a little more about what attracted you to the roles. Both of you, in fact. So let's start with Purva, maybe. Yes. Hi, everyone. As you all know, I'm playing Anupriya's role here. And what attracted me to this role is it's a very strong character. माँ बेटी की कहानी है. I am already a mother to two children. And my older one is as old as Reem, I can say. So playing an on-screen mother of the same age daughter really attracted me, but the only difference was कि ये दो माँ बेटी अजनबी है. और वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि दो अजनबी एक छत के नीचे माँ बेटी बनकर कैसे रहेंगे. So the story only was very interesting, and I think that attracted me really more to it. Hi, I'm Reem. So what I like most about Kalyani is that she's really happy-go-lucky, like she has a picture-perfect life. But so Kalyani ke shades hai, like, you can see in the first promo, I was like really happy-go-lucky and very friendly and chilled out. But in the second promo, I am the lady whom I hate the most, and I am like being very rude to her. So Kalyani ke different shades, and it's a very challenging and an interesting character. And as I love challenges, so this was very, I really liked the character. We also have Savita Tai with us. Sorry. We also have Savita Tai with us. You've seen her in the promos. There's no reason you shouldn't be coming up on stage, ma'am. Please join us. We're purposely holding back some of... tell us a little bit about your role. नमस्ते. सबसे पहले तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरा भी खास राब्ता है जी टीवी के साथ. और मैं जी टीवी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग तरह के रोल के लिए चुना, जैसे कोशिश एक आशा, पवित्र रिश्ता, और अब तुझसे है राब्ता. तुझसे है राब्ता में ये एक महाराष्ट्रियन फैमिली है और मैं अहिल्या देशमुख का कैरेक्टर कर रही हूँ. दर्शकों ने आज तक मुझे अलग अलग रोल में देखा होगा, लेकिन यहाँ मैं एक स्ट्रिक्ट सास के रूप में हूँ और हमारे पूरे परिवार को एक साथ बांधने के लिए मैं कोशिश करती हूँ. और ये मेरी बहुत प्यारी बहू है जिसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है. और इसकी जो अभी पहचान हुई है सीरियल में,
तो इसके जो कारनामे हैं उससे मैं दंग रह चुकी हूँ कि ये मुझसे क्या क्या नहीं करती, और अजनबी होकर भी मुझसे शराब लेने के लिए, मुझे शराब खरीदने के लिए और क्या क्या नहीं करती। तो आप दर्शक जैसे जैसे देखेंगे मुझे लगता है कि उनको बहुत कहानी पसंद आएगी, और ये जो रिश्तों के ऊपर आधारित है तो मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। Thank you, Savita ji. I'd like to now call back our business head and the producer. Please back up on stage. We're throwing the house open for Q&A. You'll have seen the AV. You'll have understood what the show is all about. I'm sure you'll have a lot of questions. Can we have full house lights on so that we can see everybody in the audience? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने ये सीरियल बनाया है, इसमें सोसाइटी को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? एक्चुअली इनका मतलब आज लिखेंगे कल करके एक टैगलाइन थी जी की। Okay. और उस टैगलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कैसी आज की जनरेशन कल की जनरेशन के जो भी शॉर्टकमिंग्स है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ये मैसेजिंग है सीरियल के थ्रू एक्चुअली। ओके, थैंक यू। I'd just like to add to that. So as Z and I'll talk about the boring part of making shows, we do a lot of studies. We travel extensively across the country you can get story ideas out of anywhere. Now, if you see, I mean, through all the panels and the groups that we've been doing, we started off as a culture that largely was joint families. We, lived as a family together. If you see today's day, a lot of people that you will meet in your cities have their parents or their siblings in completely different cities. So most people now, if you ask about who the most important person in their life was, besides saying parents, who they don't really talk to as much anymore, there's always another person's name that comes up. So that was the single insight, to talk about relationships that are not tied by blood. There are other relationships that are more important in today's world, and that kind of transform you as a human being. This is one aspect of that insight. And will you involve other families also? Will it be one family only? Sorry, I can't hear. I'm here. Here, on your right. So will it be regarding one family only, or there will be other families also involved in the serial? Primarily it's one family, and there is, of course, there will be a hero, and there will be heroes here, and there will be their families subsequently in the. Why out of blood? ये जरा बताओ blood के बारे में. Blood relation में क्यों नहीं बना रहे? इसमें क्या वजह है? मैं समझ नहीं Rajinder ji, what is the question exactly? Regarding they are saying same blood से नहीं related जो रिश्ते रहते हैं. नहीं, जैसे ये माँ बेटी बायोलॉजिकल माँ बेटी नहीं है, लाइक ये इनकी माँ नहीं है बाय बर्थ, तो किस तरह से, जैसे कृष्ण को यशोदा ने भी तो बड़ा किया था, मतलब उस तरह की कहानी है ये। तो एक अलग तरह की यशोदा है जिससे एंटेगनिस्टिक है ये बच्ची उनकी, तो वैसी कहानी है। एंड एपिसोड्स कितने रहेंगे, कितने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे आप अप्रोक्सीमेट? He's asking the number of episodes. Is it a finite series that has been planned, which is not the case. It's not a finite series. एक साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है फिलहाल, बाकी रेटिंग पे डिपेंड करता है सर। The next question, please. Yeah, hi, this is Dharani from Teddy Chakkar. I have a question for Aparna ma'am here. Yeah. With you joining the family of Z, what are your plans? What are the changes that you plan to bring? Changes, that's assuming something's going wrong. But I've been part of the Z family now for 7 years. So luckily, and I think it's an intelligent decision, they haven't given me the fiction role because that's not my strength. My strength is business, and whether I ran the English cluster before or a kids cluster before, business is business, so that's what I will look into. Changes is a question if you assume something is wrong. I think, and I must mention this, the business head before me, Deepak Rajadaksha, one of my closest friends, he has handed this channel over to me in such an healthy shape. I couldn't have asked for something better. So all these shows that we're currently launching are all his hard work and his vision. It's just unfortunate that he had to move on, and he's not here today in my place to talk more about this show. So
with the strengths that we already have, we're doing it quite well. We have 3 of the top 5 shows currently in the fiction space. Our attempt with these 2 shows, of course, will be to make sure these 2 get in the top 10 as well. And we will take the channel from this current strength to further strength. I'll probably be able to add to that. Give me 3 months at least. I'm 1 week old. I'll probably tell you that in a while. Okay, thank you so much. My question is, hello here. Question to Purva, over here, very close to you. Purva, as you mentioned that you're a daughter of same age. Sorry, I can't. You got a daughter of same age? Yes. Yeah? So in real life, as a mother with your daughter, and in stage, in screen, as a mother, what difference actually, and how difficult is to play? It is extremely difficult because you know your child from the birth, you know, so, and she's a part of you. But यहाँ पे तो 2 अजनबी है और एक अजनबी को बेटी मान के उसको बड़ा करना है. So I think it's extremely difficult, and I'm trying my best. And Reen, as a mother, you are a daughter and as a mother, how you take it? As I'm like extremely close to my both the parents, my mom and dad. So, but you know, she is like just like a friend to me, and ऐसा like कुछ नहीं होता because we are living the characters. ऐसा कुछ नहीं है that एक real bond होना बहुत ज़रूरी है. I feel we are in characters, so yeah, it's not very difficult. And since I hate her already in the show, so it's even more easier. Anybody else, you'll want to raise your hands and ask questions? We're going to call them up for the photo op because we don't want to tell you anything about their roles yet. We're going to do the photo op in just a short bit. Should we move to that, guys? If you're रियल लाइफ में अपने माँ के कितना करीब हैं आप? I'm sorry? रियल लाइफ में अपने माँ के कितना करीब हैं? We cannot hear you for whatever reason. हीरोइन एक्ट्रेस को रियल लाइफ में अपने माँ के कितना करीब हैं? अच्छा, in real life, I am very very close to my mom. और मैं शुरू से यही बोल रही थी कि एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा relate करती हूँ कल्याणी से is that she is very close to her mom और वो लोग एक sisters और best friends की तरह ही रहते हैं. In real life, मैं और मेरी मम्मा भी बिल्कुल वैसे हैं. We argue over the smallest things, but we end up making fun of each other, and like we are just like best friends. We like buy the same clothes, we hang out together. She's just like a best friend to me, and same with my dad actually. Like you know, कल्याणी की एक ये चीज़ मुझ में बहुत similar है that मेरे लिए मेरे best friends और like you know the closest are my parents, and Kalyani के लिए भी the whole life revolves around her parents. So this is something that is really similar between Kalyani and I. हेलो, मेरा सवाल रीम से है. दिस वन. रीम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एज वाइज आप क्या स्टडी कर रहे हो और आपके इस कैरियर में जो आप मतलब नाटक में रोल कर रहे हो उसका आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या जो भी आप कैरियर के प्लान है कि आपको इसी इंडस्ट्री में आना था? कुछ प्लान करके मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी. और स्टडीज़ की बात करूँ सो स्टडीज़ में कुछ इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज आई रियली बिलीव कि जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है आपको वो चीज़ करनी चाहिए. और बचपन से लेके लाइक इट्स बिन 8 years सिंस आई एम डूइंग दिस, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई लव एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई लिव फॉर. तो मुझे कभी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ. एंड स्टडीज़, आई मैनेज माई स्टडीज़ रियली वेल एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स एज वेल बिकॉज या दे आर माई 24/7 टीचर्स. So I will currently give my 10th exam this year. I am doing privates. So it really does not affect me at all. Because I am actually getting to learn a lot of other things while I'm working. You know, maybe about direction, about lights, and about, you know, every small detail. So this is also like an education for me in another way. Thank you. मेरा सवाल पूर्वा जी से है. हमने प्रोमोज में स्टेप डॉटर और स्टेप मदर के रिलेशनशिप का मतलब झलक देखी, लेकिन सास बहू का जो सविता जी के साथ आपका क्या रिलेशन है इस शो में, और मतलब कैसा सास बहू का ड्रामा इसमें देखने को मिलेगा? Actually, I think इसके बारे में the writer will tell you better. You can pass it the mic. Actually, this is something that
that you will see as the show progresses. It's something that we've kept under wraps. So I think आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा ये शो में जैसे खुलता है वो देखने के लिए. Yeah, hello. My question is Aparna ma'am. Ma'am, sorry to say you that we are missing Deepak sir over there. He's been always there, so we are missing. I want to know, as you have taken over, what change you like to get on ZTV. I know he's already, you told that he has given me a ready platter to continue. So would like to have some more changes in it. So like I mentioned for the question earlier as well, I mean, if anybody, forget me, anybody comes in a new role and decides what changes have to be made in 1 week, there's something fundamentally wrong. The channel currently is doing exceptionally well. We have Kumkum Bhagya, we have Kundali Bhagya, we have Ish Subhanallah, which are doing incredibly well. Now the endeavor is, we have 2 very powerful launches coming between 8 to 9. Frankly, that's what I mentioned. You love Deepak, I love him more. He has handed this channel over to me with so much health. I can only be thankful. He's done an incredible job. I miss him to death. I will absorb this channel. I will work with the team. It will take 2-3 months. We're already at strength. We'll figure ways together to take this channel even higher. But right now, it would be stupid to make any changes. There are more new channels just recently launched. What do you have to say about that? Even they are coming up in Marathi and others. Sorry, you're saying new channels have launched? Yeah, I actually, sorry to say this, it's a wrong question I asked you. Wrong, Okay. It was a wrong question. We move to the next. Yeah. Okay. Is there anybody else who...
नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वापस जी पर एक अच्छा सीरियल करने का मौका मिला है। और ये जो किरदार है जिसका नाम है अहिल्या देशमुख, तो ये बहुत ही प्रभावशाली कैरेक्टर है। और एक हमारी एक भरा पूरा परिवार है जो वो ये कंट्रोल करती है और पूरे घर को एक साथ बांध के रखती है। तो मेरा अनुप्रिया के साथ क्या रिश्ता है, मेरा कल्याणी के साथ क्या रिश्ता है, और ये सब देखने के लिए आप ज़रूर देखिए तुझसे है राब्ता। हम ये बोल सकते हैं कि जो पवित्र रिश्ता में आपका कैरेक्टर, तो सेम कैरेक्टर भी इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर रिश्ता? मैं सेम नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि उतना ही प्रभावशाली ये कैरेक्टर है, क्योंकि कुछ अलग है, कुछ और चैलेंजिंग है, इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर करने का फैसला किया। तो उसमें एक माँ का एक अलग रूप था, इसमें सास का एक अलग रूप है, तो मुझे ये करने में बहुत खुशी मिली। प्रोजेक्ट उसके पीछे एक खास रीजन होता है जो दिल को छू जाती है। बिल्कुल, कहानी। इस कहानी में क्या लगी आपको कि ये मुझे करना ही चाहिए? नहीं, मैं देखती हूँ कि जब मैं कहानी सुनती हूँ तो वो मुझे बांध के रखती है कि नहीं। अगर मुझे बांध के रखती है तो मुझे वो किरदार निभाने में और मज़ा आता है। और मैं देखती हूँ कि उस पूरे कहानी में मेरा रोल कितना इम्पोर्टेंट है, वो कहानी में इमोशंस है कि नहीं। और जैसा कि हम देखते हैं कि दर्शकों को परिवार की कहानियाँ अच्छी लगती है, परिवार रिश्ते तो हमारे बेसिक्स होते हैं, तो उस रिश्तों पर आधारित ये कहानी है, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फाइनली अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? काफी मैं बस यही कहूँगी कि जी के सारे दर्शकों को और सारे दर्शकों को यही प्रार्थना करूँगी कि आप ये सीरियल ज़रूर देखिए और बहुत प्यार दीजिए। टेंशन नया शो लेके आ रहे जी टीवी पे 3 सितंबर से 8:30 बजे, तुझसे है राब्ता। तो माँ बेटी की कहानी है, लेकिन ये अलग रिलेशनशिप है, सिर्फ माँ बेटी नहीं है, लेकिन ये दोनों अजनबी है। ये दोनों अजनबी को माँ बेटी बनकर रहना है एक ही छत के नीचे, तो थोड़ा अलग रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही अनुप्रिया माँ का रोल प्ले कर रही हूँ मैं, और सिंपल लविंग केयरिंग मदर है। सिंपल मतलब कुछ उसमें अलग हटके ऐसे कुछ भी नहीं है कैरेक्टर में। सिंपल कैरेक्टर है जो फैमिली वैल्यूज़ में बड़ी हुई है, गांव में रहने वाली है। जैसे फैमिली उसके लिए सब कुछ होता है, फैमिली इज़ हर प्रायोरिटी। सब घर का काम करती है, सबको खुश रखती है, मतलब खाना बनाती है। जो नॉर्मल सिंपल लाइफ उसका जैसे होता है वैसे ही लाइफ है ये अनुप्रिया का। और फिर सडनली ये कल्याणी उसके लाइफ में आती है और सब उथल पुथल जाता है। हाँ, वही एक्चुअली प्रोमो ने ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बना रखी है। मैं वही कहूँगी कि ये कैरेक्टर ही ऐसा स्पेशल है ना कि देर आर अ लॉट ऑफ शेड्स इन दिस कैरेक्टर, बोथ द कैरेक्टर्स आई वुड से। और क्योंकि दोनों के लाइफ में सडनली कुछ हो जाता है जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत है दोनों के लाइफ्स में, तो इसीलिए ये अलग अलग इमोशंस के शेड्स आपको थ्रू आउट द स्टोरी दिखने को मिलेंगे। सविता मैम को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि बहुत काम नहीं किया है, थोड़ा सा काम किया है, बट बिकॉज मराठी इंडस्ट्री की है और बहुत मिलते हैं रहते हैं हम लोग, तो मैं बहुत जानती हूँ उनको। तो अब बहुत सारा काम करने को मिल रहा है उनके साथ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, बिकॉज मतलब अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फोटोज में हमें बोला जाता है कि नहीं यू नो गुस्से में रहना, गले मिलके फोटोज नहीं खींचना, तो वो याद दिलाना पड़ता है लोगों को कि ऑन स्क्रीन तुम लोग ऐसे हो, ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही रहना। तो ये नॉर्मल है, बट एक्टर्स तो मतलब वो स्क्रीन पे अलग होते हैं और ऑफ स्क्रीन अलग होते हैं। थैंक यू सो मच। तुझसे है राब्ता। राब्ता मतलब कनेक्शंस बनते हैं रिश्तों के साथ। रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं, खून के और जो खून के रिश्ते नहीं होते। अब ये कहानी एक माँ बेटी की है, लेकिन इसके साथ और भी रिश्ते हैं जो जुड़े हुए हैं। तो कहानी आगे कैसे जाती है ये डिपेंड करता है। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, देखें 3 सितंबर को 8:30 बजे, मंडे से फ्राइडे, ओनली ऑन जी टीवी। मैं अभी यार कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बोलना मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मैं बोल सकता हूँ कि चार्मर है, स्मार्ट है, टेढ़ा है,
अगर काम निकलवाना है तो निकलवा लेगा। वन डायमेंशनल नहीं है कि अच्छा ही है या बुरा ही है। शैतान भी हो सकता है, रिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है, बदतमीज़ भी हो सकता है, गुस्सैल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ड्रामा जी, ड्रामा मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ड्रामा है और मेरी तरफ से पूरी एंटरटेनमेंट शो को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। सारे जितने व्यूअर्स हैं और जो लोग मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना लव और सपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर वाला साथ है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस शो को भी बहुत सारा प्यार दें। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस शो को माध्यम से आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी सपोर्ट कीजिए एंड आई लव यू ऑल। गुल मखाई के बाद में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आफ्टर गुल मकई नाउ आई एम डूइंग तुझसे है राब्ता एंड बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स है दोनों। मलाला वाज वेरी काम एंड वेरी सुलझी हुई, कल्याणी इज थोड़ा हाइपर एंड वेरी चिल्ड। सो यस, कैरेक्टर में थोड़ा बता देंगे? कैरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी गो लकी, चिल्ड आउट गर्ल, मस्ती में रहती है, अपने मज़े में रहती है। शी इज़ लिविंग हर लाइफ वेरी वेल, बट सम थिंग्स हैपन, कुछ हो जाता है और फिर आगे का ड्रामा आप देख ही लेना। बहुत अच्छा रहा है। अरे वो मुझसे काफ़ी सीनियर है तो मुझे पता चला, मैं उनके साथ काम करी। इट वाज लाइक वेरी, आई वाज रियली हैप्पी कि हमारी स्टारकास्ट भी इतनी अच्छी है। तो लाइक शी इज़ रियली सीनियर, तो उनके सामने थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है बस। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। शी मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ग्रैंड मदरली टाइप फीलिंग देती है मुझे। जैसे हर शो के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, लुक टेस्ट होते हैं, मॉक शूट होता है। इट्स नॉट दैट इजी, यू नो। तो वही ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हुआ, फिर मॉक शूट हुआ, फिर जाके फाइनली शूटिंग का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? शूटिंग फनी हो। रिसेंटली मैं शूटिंग करते करते गिर गई थी। इट वाज अ नाइट शूट, तो असर हो गया था थोड़ा आइकन से, तो वो था। और मुझे आम्रपाली दी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। जैसे कभी कभी हम लोग सच में मस्ती करने लग जाते हैं और सर कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आपने प्रोमोज देखे तो वो जो पिंक वाला जो था ना, जब हम सेम ड्रेस पहन के आते हैं तो हम लोग एक्चुअली इतना खुश हो गए थे और वो कैंडिड बहुत आ गया था टाइप्स। सो यस, या थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा सी डाउन थी। सो सेवन, क्या कहना चाहोगे? जी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। और क्या आप... नहीं, एक बार फिर से नहीं, ये मेरा पहला कदम है जी के लिए और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ, प्रोडक्शन भी नया है, पहली बार काम कर रहा हूँ। आई थिंक सिनेस्ता ने मुझे अडॉप्ट ही कर लिया था। सारे शो मैंने सिनेस्ता के साथ किए, फिर एक रश्मि शर्मा, फिर गुल खान, 4 लायंस। आई थिंक अब ये एक अच्छा टाई है, अच्छा एक फैमिली से कनेक्ट हुआ हूँ। फुल हाउस मीडिया काफ़ी अच्छे लोग हैं यार, मतलब मैं उनसे मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आधा तो मैं वहीं कन्विंस हो गया था इन लोगों से मिलके, यार कितने अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छा ही कुछ बनाएंगे, तो लेट्स डू समथिंग। तो यार मल्हार राणे बहुत ही दबंग इंस्पेक्टर है, एसीपी है। हाँ, एसीपी है और बहुत ही गुस्से वाला और बहुत मार पिटाई करने वाला और शोर शराबा करने वाला है बाहर जाके, लेकिन घर आके बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। बहुत ही शांत और बहुत कम बोलने वाला, सिर्फ काम की बात करने वाला, औरतों की सुनने वाला, इस तरह का कैरेक्टर है। और आई थिंक दोनों माँ बेटी जो हैं, अनुप्रिया और कल्याणी, उन दोनों के बीच का सूत्रधार है, उन दोनों के बीच कनेक्ट करेगा कुछ ना कुछ और दोनों को एक साथ लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा और फैमिली को एकजुट रखने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जब आपको पुश किया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि एसीपी का कैरेक्टर करना है? फर्स्ट टाइम आई थिंक से ये एसीपी का कैरेक्टर कर रहे हो आप, ऐसा सो क्या लग रहा था? पहला रिएक्शन ये था कि एसीपी, मुझे लगा कि मैं लग पाऊंगा एसीपी, यू नो। तो उन्होंने कहा नहीं लग जाओगे, थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लो, थोड़ा सा जिम विम जाओ, थोड़ा हल्की सी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो मैंने कहा हाँ, कोशिश करेंगे तो शायद लग जाऊंगा, कोशिश करते हैं। तो अच्छा है। ओके सर, क्या चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए इसमें अब तक अगर शुरू किया है? अभी तक जो चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए अभी भी है वो एक मराठी नुआंस है कैरेक्टर में, क्योंकि पूना बेस्ड, महाराष्ट्रियन बेस्ड कैरेक्टर है, पूरी फैमिली वहाँ से बेस्ड है। तो उसको थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा नुआंस और एक थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन एक पिक कर लूँ। नॉट दैट कि मुझे मराठी बोलनी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ भी एक जो मराठी लोग होते हैं उनका एक हल्का सा स्वभाव होता है एक बोलने का, एक तरीका होता है बोलने का,
वो हल्का सा मैं पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो आज मेरा पहला दिन था शूट का, तो अब आज तो अच्छा गया, लेकिन देखिए वो मेरी बिगेस्ट चैलेंज यही है अभी। यार प्लीज मेरा शो देखो बेपना भी देखते रहो। आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे बेपना, एंड आई गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम बेपना, बट दिस शो इज ऑल्सो डिफरेंट एंड प्लीज वॉच इट। ये 3 सितंबर से शुरू होगा 8:30 बजे जी पर, और आपको आई हैव अ फीलिंग कि मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे शो की स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इट विल ग्रैब यू, इट विल कम्प्लीटली टेक यू टू अ राइड। प्लीज वॉच इट। थैंक यू। चल क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं पंकज विष्णु। ये एक बहुत ही बढ़िया शो लॉन्च होने जा रहा है 3 सितंबर से 8:30 बजे जी टीवी पर, तुझसे है राब्ता। हम देखते हैं कि आज की तारीख में इस समाज में ऐसे कुछ रिश्ते पैदा हो जाते हैं जो हम बोलते हैं कि एक खून का रिश्ता होता है, और उस खून के रिश्ते से परे कुछ ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जो हम पर कभी कभार थपकते हैं या फिर अपने आप जुड़ जाते हैं। तो वो जो कुछ रिश्ते होते हैं उन्हें हम कोई नाम नहीं दे सकते। वो दोस्त है या फिर मेंटोर है या फिलोसोफर है कोई, बट ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को, आपके जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। तो ऐसे कुछ रिश्ते देखने को मिलेंगे आपको तुझसे राब्ता में। मैं उसमें एक किरदार कर रहा हूँ अतुल देशमुख का, जो एक बैंक में काम करता है, बैंक मैनेजर है। वो, उसकी बीवी और उसकी बच्ची, उसका एक इन तीनों का बहुत ही सुखी परिवार है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी कट रही है, और इन तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और लेकिन एक बात, एक मोड़ पर ज़िंदगी के उनको ऐसा एक घटना घटती है उनके जीवन में जो उनके जीवन को पूरी तरह झकझोर देती है, पूरी तरह बदल देती है। जैसे कहते हैं पैरों के तले ज़मीन सरक जाती है। तो उसके बाद क्या क्या होता है और रिश्तों में कैसे दरारें पड़ जाती हैं या नए रिश्ते कैसे जुड़ जाते हैं, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुझसे राब्ता। जी, और कैरेक्टर देखा जाए तो फिर लोगों को एक बोलते हैं कंफ्यूजन में रखिए कि जी, ये जानबूझ के कंफ्यूजन में रखा गया है, बिकॉज जब कहते हैं कि एक सरप्राइज एलिमेंट जिसको बोलते हैं, कि जब कोई भी व्यूअर्स है, जो हमारे ऑडियंस हैं, जब वो देखेंगे तो उन्हें हर बार ऐसा लगना चाहिए कि अभी क्या आगे होने वाला है। तो एक उत्सुकता जिसको बोलते हैं, एक दिलचस्पी कायम रहनी चाहिए कि क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है, ये एपिसोड खत्म हुआ तो अगले एपिसोड में कौन क्या करने वाला है। तो ये जो अपने प्रोमोज देखे हैं वो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि लोगों में, हमारे ऑडियंस के बीच में एक मसला रहे कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो बरकरार है, और मेरे ख्याल से उसको मद्देनजर रखे ये सब किया है। जी जी जी, किस तरह से टाइम मैनेज हो रहा है? टाइम मैनेज हो रहा है अभी कुछ नहीं। मैं भी फिल्म्स भी कर रहा हूँ साथ में। मेरी एक फिल्म, मराठी फिल्म भी जस्ट करके आया हूँ, उसका नाम है ग्रे, जो एक थ्रिलर जॉनर की है, और 1-2 फिल्में मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें कुछ पैचवर्क बचा है। तो इट्स वेरी काइंड कि भगवान की दया से सब मैनेज होता है। अगर आप थोड़ा से इनिशियल आपको बता दो कि अब मुझे शूटिंग में करना है, जाना है कुछ दिनों के लिए, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से थिएटर, टेलीविजन एंड फिल्म्स तीनों में मैनेज कर लेता हूँ। फैंस के यही करूँगा कि मैं अतुल देशमुख आपको प्रार्थना करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे शो को देखिए 3 सितंबर से 8:30 बजे जी टीवी पर। आपने जो प्यार मुझे दिया है, इसी शो को, जैसे आपने पवित्र रिश्ता मुझे अजीत लोखंडे के किरदार में देखा था, आज अतुल आपके सामने आ रहा है, उसको भी उतना ही प्यार, उतना ही सराहना दीजिए। थैंक यू वेरी मच।